watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. Today, the bulldozers rolled out again in Uttar Pradesh, this time against those who are involved in the murder of Umesh Pal in Prayagraj. The police has now identified a total of 13 shooters and in addition, planners who were a part of this murder conspiracy hatched at the behest of Samajwadi Party leader, ex-Samajwadi Party leader Atiq Ahmed. But even as the law cracks down on those who have their hands covered in blood, the politics in UP raged over who has emboldened the murderers from behind the scenes. And also questions were raised about the legality of the bulldozer action. Unmindful of all this, the police is hot on the heels of the murderers. Prime among them are Guddu Muslim, seen lobbing bombs at Umesh Pal's gunners. Atiq Ahmed's son Asad, who was seen with a gun at the spot of the murder, and a man known as Ghulam, who was the main shooter and assassin. Raids were carried out at the flat owned by Atiq Ahmed in Lucknow to hunt for Asad. While Asad was not found, the police did impound 2 luxury cars belonging to the family. The STF also picked up a man linked to shooter Ghulam, and the Prayagraj Development Authority got cracking on the property owned by Atiq's close aide Javed Ahmed. From the property, 2 rifles and a sword were also recovered. But now the fight is intensely political and is centered around the links that are slowly but undeniably emerging between the Samajwadi Party and the murderers. First, it was the planner Sadakat who was arrested from the Muslim hostel in Allahabad University, and his pictures were seen with Akhilesh Yadav. And now Times Now has accessed pictures of the shooter Ghulam. Remember, Ghulam is the man that you can see on your screen lying in wait. He was caught on CCTV cameras lying in wait at the site of the encounter and then firing indiscriminately at Umesh Pal and his gunners, killing all 3. Now, Ghulam's pictures have surfaced campaigning for the former president of Allahabad University and the Rashtriya Mahasachiv of Samajwadi Party Chhatra Mahasabha, Uday Prakash Yadav. In another picture, Ghulam can also be seen with Akhilesh Yadav himself, flanked by Uday Prakash Yadav in what seems like the SP's office. No wonder then that today Yogi Adityanath put the Samajwadi Party and Akhilesh Yadav firmly in the dock for their links with murder and mafia. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है जिसने यहाँ की परंपरागत उत्पाद को, एमएसएमई को एक नया जीवन दिया है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब एक पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? The question though remains, have these links with the murders now become too close for comfort for the Samajwadi Party, and will they come out and explain the presence of everyone from the planners to the shooters to masterminds in the midst of the party? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time.
All right, joining us on the debate is Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, Mr. R. Rajgopalan, senior journalist, Advocate Adil Hassan, AIMIM youth president and advocate. The first question naturally is to IP Singh, national spokesperson of Samajwadi Party. Mr. IP Singh, अगर माफिया पे बुलडोजर चल रहा है तो समाजवादी पार्टी को परेशानी क्यों हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया है। पिछले 6 वर्षों से आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। 6 वर्ष हो गए सरकार को। केंद्र में 9 वर्ष की सरकार है। ये वही सरकार है जो ये कहती है कि गुंडे उत्तर प्रदेश की सीमाएं छोड़कर चले गए। IP सिंह जी, ये बताइए, अभी मुद्दा है बुलडोजर का। बुलडोजर अगर अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर चल रहा है तो क्या परेशानी है? नहीं, ये देखिए, बात बिल्कुल सही है। इन सभी के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। हमारे कहने का यह मतलब है कि अपराधी जो बचे रह गए, ये कैसे बचे रह गए? जब आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो गया, उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है, फिर ये लोग कैसे बचे रह गए? IP सिंह जी, मैं आपको बताती हूँ कैसे बचे रह गए। आपको राम राज्य की चिंता हो रही है। जो अतीक अहमद ने 2005 में मर्डर किया, 2008 में सरेंडर किया, 2012 में वो रिहा हो गया, 2014 में आपने उसको अपने सिंबल पर लड़ाया और अब आपको राम राज्य की चिंता हो रही है, आपको लॉ एंड ऑर्डर की चिंता हो रही है। जब एक मर्डरर को अपने सिंबल पर आप चुनाव लड़ा रहे थे 2014 में, तो लॉ एंड ऑर्डर और राम राज्य कहा गया था सर। इसीलिए तो बचा है अतीक अहमद। 2014 छोड़ दीजिए, 2018 में जेल में से छोड़, एक अपराधी को 2005 में हत्या कर चुका था, 2008 में जेल जा चुका था। एक आदमी जो कि सजा याफ्ता था, आपने छुड़वा के उसको इलेक्शन लड़वाया और आज आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। माफिया को टिकट दे आप, सुननी पड़ेगी सर, माफिया को टिकट दे आप, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाएं। आपको सुनना पड़ेगा। माफियाओं को टिकट बीजेपी देती है। माफियाओं को सर, कोई लखनऊ में रहता है ना, उसको पता है कि कोई एक बोलेरो गाड़ी या स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें होता था समाजवादी पार्टी का झंडा, उसका क्या मतलब होता था। MLC का चुनाव लड़ा और लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर समाजवादी पार्टी के झंडे की गाड़ी कोई आ जाए, पूरी दुनिया जानती है उसका क्या मतलब होता था। तो आप राम राज्य लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ना करें। अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाया किसने? और अगर 2005 में वो मर्डर बंद कर चुका था, 2014 में आपने क्यों लड़ाया? आप बताइए ना, क्यों लड़ाया? बीजेपी के 3 और मुख्यमंत्री हुए। आदित्यनाथ जी चौथे मुख्यमंत्री हैं। चौथे मुख्यमंत्री, क्या बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है? क्या अतीक अहमद तब नहीं था? मुख्तार अंसारी तब नहीं था? ये माफिया गुंडे तब नहीं थे? आखिर इनका खात्मा बीजेपी ने क्यों नहीं किया? अब हो रहा है ना खात्मा, किसने होगा खात्मा, ऐसे ही होना चाहिए खात्मा। ये सोचने वाली बात ये है। IP सिंह जी, ये बताइए, पहले मुलायम जी की सरकार थी, अतीक अहमद का एक छत्र राज था। मायावती की सरकार, उसने सरेंडर किया। 2012 में आपकी सरकार बनी, अतीक अहमद जेल के बाहर आ जाता है, फिर चुनाव लड़ लेता है, फिर वो अचानक से बड़ा होने की कोशिश करता है। आप ये बताइए ना कि अतीक अहमद के बेटे को सरेंडर कब हुआ? कब हुआ? जब योगी सरकार बनी। नहीं तो अतीक अहमद के बेटे, अतीक अहमद की बीवी, अतीक अहमद के माइनर बेटे, हर कोई गुंडा है। किसने उनको इतना फ्री रन दिया हुआ है? क्यों अब उनके 2 बेटे जेल में बैठे हुए हैं और बाकियों पे FIR है? बीजेपी शेल्टर देती है। उनके जो इलाहाबाद के मंत्री हैं वो शेल्टर देते हैं क्योंकि उसका लाभ बीजेपी को लेना होता है। अच्छा, बीजेपी लाभ ले लेती है पर चुनाव चिन्ह आपका लड़ते हैं वो। बट ये बताइए संजू वर्मा, द डिबेट टुडे ऑल्सो इज प्रोटेक्शन देती है that your minister and MP, ठेके पट्टे देती है। fine, Atiq Ahmed is in jail. His sons are in jail. Another son is on the run. There is a bounty on his head. 50,000 reward has been given. But you can't have MPs and ministers of the BJP saying कि उनकी गाड़ी पलट जाएगी। ये तो मतलब this seems like state sponsored गुंडा राज, where you're saying हम इसकी गाड़ी पलट देंगे, हम इसको ठोक देंगे, हम इसको गिरा देंगे। ओके, पद्मजा जी, प्लीज इनको अभी चुप करवाइए। मैंने बिल्कुल इनको नहीं टोका। He's silent. Go on. I don't know, I can hear some echo in my audio. अरे घबरा रही है, हम कौन सा आपको अरे भाई साहब। Okay, one at a time, please. How can you say गाड़ी पलट जाएगी, संजू वर्मा? थैंक यू।
Okay. Padmaja, first things first. You've laid out the tone of the debate. Let's be very clear that हत्या राजूपाल की हुई थी जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे. रिहाई हुई आतिक अहमद की जब मायावती मुख्यमंत्री थी 2012 में, और आतिक अहमद को सांसद की टिकट और उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे. तो चाहे मुलायम सिंह यादव की बात करें या मायावती की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, इन सब ने, एज योगी आदित्यनाथ recently said on the floor of the assembly, when it comes to common man, आम आदमी के लिए हम बड़ी मित्रतापूर्ण और संवेदनापूर्ण, these are the two words he used, हम पेश आएंगे. बट जहां अपराधियों की बात आती है तो हम वो सब कुछ करेंगे जो करना चाहिए ताकि उनको उनकी सही जगह पहुंचाया जाए. क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल नहीं होगा, कानून का राज नहीं होगा, तो पुलिस कर्मचारियों पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा उन पर से, और उनका आदर सम्मान नहीं होगा. टेल मी व्हाट इज रॉन्ग इन दिस. तो पुलिस के विश्वास के लिए आप कह रहे हैं कि गाड़ी पलट जाएगी. दिस ऑलमोस्ट सीम्स लाइक सजेस्टिंग कि हम उसको फेक एनकाउंटर में मार गिराएंगे. I will answer that. Padmaja, I have said this many times on your debate. You will not take on board what the Chief Minister of Uttar Pradesh is saying, but you will take on board what some junior member, some Tom, Dick and Harry somewhere is saying. I am saying when it comes to Uttar Pradesh, Yogi Adityanath's word is final. He has said that under the UP Gangster Act of 1986, Okay, and under the UP Gangster Rules of 2021, Section 37(3), मुझे बताइए सेक्शन 37(3) के तहत जो गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है वो तो कानूनी भी जायज है. आप उसको कैसे कह सकते okay. हैं? I'm not entirely sure Subrat Pathak would be happy to be called a Tom, Dick and Harry is a member of parliament, but the UP Chief Minister एडवोकेट आदिल हसन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो कानून पसंद है उसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बाकियों को मिट्टी में मिला देंगे कानून के दायरे के अंदर, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो टॉम, डिक एंड हैरी हो. मैम, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है. ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, समझ में आएगा, सत्ता बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, जब अहंकार टूटेगा तो इन्हें भी समझ में आएगा. हम रूल ऑफ द लॉ की बात करते हैं, हमें भारतीय जुडिशियरी पर पूरा यकीन है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर लोअर जुडिशियरी पर हम उस पर विश्वास करते हैं. योगी आदित्यनाथ जी को पहले यह जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ऊपर जितना आपराधिक मामला किस बुनियाद पर उन्होंने हटाया. पहला हिंदू भारत के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने ऊपर आपराधिक जितनी भी मुकदमाएं थे उन्होंने हटा ली. यही तो न्याय है उनका. बोलते हैं कि मैं राम राज लाऊंगा, बोलते हैं कि मैं इंसाफ की बात करूंगा, न्याय करूंगा, गरीब को इंसाफ दूंगा. एक आदमी अपने पर जब न्याय नहीं कर सकता है तो दूसरे पे वो क्या न्याय करेंगे? सर, एक आप मुद्दे पे बात करें, जहां तक की लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सर लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो उस पे अप्लाई होता है ना जो लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखे. जो आदमी दूसरों को गोली मार दे दिन दहाड़े, जेल में बैठ करके उसकी प्लानिंग करे, उसमें आप क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? माफिया को तो हटा करके लॉ एंड ऑर्डर बनेगा ना. मैम, उत्तर प्रदेश कभी इस चीज में पीछे ही नहीं रहा है ना मैडम. अभी कानपुर में बुलडोजर चलाया, आपने देखा कि 2 मासूमों की कैसे निर्मय हत्या हो गई. आप ही बतलाइए, पहले भारत के सर, जहां तक कि उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात है, मैं आपको आंकड़े बता सकती हूं. अगर हम जेनेरिक आंकड़ों की बात करेंगे तो मैं आपको आंकड़े इतने बता सकती हूं कि जहां तक कि रेप का सवाल है, 2014 और 2020 के बीच में जहां 3,467 cases of rape were there in 2014. In 2020, it's come down to 2,769. Whereas far as murder is concerned, 5,150 in 2014 has come down to 3,779. Law and order के बारे में जहां तक का बात करें, according to the state government, 124 criminals have been eliminated in various police encounters from the 13th of March 2017 to the 9th of August 2020. That being said, in the present case, the simple question is, Mr. Rajgopalan, that in the name of law and order, कैन द स्टेट रन रफशॉट? मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है कि भाई हम ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, बट अल्टीमेटली थिंग्स लाइक कानपुर हैपन वेयर अ लेडी एंड हर डॉटर वर इमोलेटेड.
Padmaja, you talked about Kanpur, but you talked about Atiq Ahmed. I am following the story very closely, and the panelists, other two representing Samajwadi Party and other party, they are not arguing properly. My understanding is, as Prime Minister has said that UP mein law and order saaf sudhari hai. That is what you reflected on your statistics, just you rolled it out, Padmaja. But my understanding is, why did people, voters of Uttar Pradesh, re-elect Mr. Yogi Adityanath? And Prime Minister also said Yogi plus UP is equal to Upayogi. And Yogi Adityanath yesterday in the assembly also very categorically said, Bharatiya Janata Party has given one district, one product. But here, what the previous government gave was one district, one mafia. He said it on the floor of the House. So why can't you answer that? These two spokespersons of AM and Samajwadi Party should answer that. Apart from that, law and order has come out very clearly. And in 2024, Prime Minister Narendra Modi also stated, and Yogi Adityanath is also very silent on that. My understanding is Yogi Adityanath, best law and order, kept the state under control. There is no crime activity. Beyond that, bulldozer, yes, bulldozer is being that. Mamata Banerjee has also copied that. Why can't this Samajwadi Party react to that? Mamata Banerjee enacted a law in the State Assembly of... And Ashok Gehlot, Congress is Ashok Gehlot. उन्होंने राजस्थान में कहा कि जो पेपर लीक कर रहे हैं उनके घर गिरा दिए जाएंगे. पेपर लीक के मामले में बुलडोजर अशोक गहलोत इस्तेमाल कर रहे हैं. ममता बनर्जी प्रॉपर्टी अटैच कर रही हैं. वहां पे किसी को लॉ एंड ऑर्डर याद नहीं आता. बट लेट मी कम बैक टू यू मिस्टर आईपी सिंह. आप जो बात कर रहे हैं ना, आज मुख्यमंत्री ने बोला one district, one mafia. It also seems कि in this present case, it is one day, one समाजवादी पार्टी कनेक्शन. पहले अगर सदाकत की बात थी, तो आज एक गुलाम निकल करके आ रहे हैं. ये गुलाम भाई साहब ना सिर्फ अखिलेश जी के साथ, उनकी तस्वीर है, देखिए उनकी तस्वीर, अखिलेश जी के साथ. मतलब ऐसा लगता है, आज शिवपाल जी ने बोला कि भाई समाजवादी पार्टी के ऑफिस में तो कई लोग आते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है. सारे शूटर, दंगाई, गुर्गे, ये क्यों आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऑफिस में? कभी सदाकत आ जाता है, अभी गुलाम की फोटो आ गई अखिलेश जी के साथ. और ये गुलाम भाई साहब तो आपके छात्र परिषद के नेता के साथ उनका प्रचार कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं उनकी. देखिए तस्वीरों में दिख रहे हैं वो, उदय प्रताप यादव की कैंपेनिंग की है उन्होंने. ये जो जिस फोटो की बात आप कर रही हैं, पब्लिक डोमेन में जो भी है उसके साथ अब ऋचा सिंह वहां प्रेसिडेंट रही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, अहमद साहब थे, और जो भी लेके आएगा उसके साथ फोटो होती है. तो कॉमन फिनोमेना है, लेकिन उसको लेकर आप चर्चा करेंगी. अरे आप सदाकत को छोड़ दीजिए, अब तो मैं शूटर की बात कर रही हूं सर. आईपी सिंह साहब, आप तस्वीरें देखिए. गुलाम वो आदमी है जिसने गोली चलाई, वो दिख रहा है गोली चलाते हुए, वो दिख रहा है प्रचार करते हुए. राष्ट्रीय महासचिव छात्र महासभा समाजवादी पार्टी उदय प्रकाश यादव का प्रचार किया है गुलाम नाम के शूटर ने. हमें बोलने नहीं दे रही हैं. शूटर प्रचारक बन गया, शूटर प्रचारक है समाजवादी पार्टी का. हमें बोलने तो दीजिए. बोलिए, गुलाम क्यों प्रचार कर रहा है आपका? दो मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी उपलब्धि कि उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में 3721 हत्याएं हुई हैं. अरे सर आप एनसीआरबी छोड़िए, तो उत्तर प्रदेश अभी ये तस्वीर देखिए और बताइए, और सर तस्वीर देख के बताइए कि शूटर में समाजवादी पार्टी का प्रचार क्यों कर रहा है. डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कल्याण सिंह जी क्या कर रहे थे? शूटर प्रचार क्यों कर रहा है? स्वर्गीय कल्याण सिंह जी क्या कर रहे थे? सर कल्याण सिंह जी जो भी कर रहे थे, ये गुलाम क्या कर रहा है आपके प्रचार में? जब वो मुख्यमंत्री थे, श्री राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे. अरे सर गुलाम आपका प्रचार क्यों कर रहा है? सोकाल बाबा जी मुख्यमंत्री हो गए. ये गुलाम आपका प्रचार क्यों कर रहा है? 6 वर्षों से ये क्या कर रहे थे? कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की. सर आप प्रोडक्ट पे आ गए. मैं कह रही हूँ कि एक सेकेंड, योगी जी ने तैयार किया. क्या आप गुलाम का जवाब देंगे? आईपी सिंह साहब, आप फिर से तस्वीरें देखिए.
इस शूट आउट में साफ साफ गुलाम ना सिर्फ एक सेकंड व्यूअर्स को तस्वीरें देखने दीजिए, ना सिर्फ ये आदमी दिखाई दे रहा है जिसने राजू पाल के ऊपर गोली चलाई, उसके बाद इसने जाकर के जो पुलिस वाला जमीन पे पड़ा था उसकी राइफल खींची। कुलदीप सेंगर जो बीजेपी के एमएलए थे, क्या क्या किया उन्नाव में? अरे जेल में है ना कुलदीप सेंगर, उसको होना चाहिए। विधायक, सांसद, मंत्री, नेता। ओके, लेट मी ट्राई एंड आस्क एडवोकेट आदिल हसन साहब, अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है, क्या सही है क्या गलत है की बात की जा रही है। सिंपल सवाल मैं ये पूछ रही हूं कि एक आदमी जिसने गोली चलाई है वो समाजवादी पार्टी का प्रचार क्यों कर रहा है? मैम ये तो बेहतर समाजवादी पार्टी बतलाएगी, लेकिन मुझे एडीआर की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। 403 एमएलए में 205 एमएलए आपराधिक है, जिसमें बीजेपी के सर्वाधिक है। 111 एमएलए पर आपराधिक मामला चल रहा है, समाजवादी दूसरे नंबर पे है। अरे सर, आप पुरानी है, आप जेनेरिक आंकड़ों पे क्यों जा रहे हैं? मैं तो सिंपल सवाल ये पूछ रही हूं कि चलिए अतीक अहमद से दूरियां बना ली, आपने सदाकत से दूरियां बना ली, अब ये तो बता दीजिए आईपी सिंह साहब, आप बताएंगे शूटर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये शूटर? सदाकत ना फोटो है, शूटर क्या कर रहा है? प्लीज कम इन। अखिलेश जी के साथ है शूटर, आपके छात्र महासभा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ है, जनरल सेक्रेटरी के साथ है ये शूटर। क्या कर रहा है शूटर, बताइए आईपी सिंह साहब। भाई आप बीजेपी के नाम लेने से पद्मजा क्यों डर रही हैं, क्यों चिंतित हैं आप? बीजेपी के विधायकों के साथ उसकी फोटोग्राफ है, मुख्यमंत्री जी के साथ सदाकत की बात ही नहीं कर रही सर, बहराइच का है। मैं इस गुलाम नाम के आदमी के आपकी जबान गुलाम का नाम लेने से क्यों लड़खड़ा रही है? मुख्यमंत्री जी को, आदित्यनाथ जी को बहराइच में गब्बर सिंह, उसका जिक्र आप नहीं करेंगी। ओके संजू वर्मा, क्लियरली आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स टू व्हाट दिस मैन वाज डूइंग एंड इट्स शॉकिंग। द सेम मैन seen with Atiq Ahmed's son, the same man seen opening fire at a policeman, the same man seen picking up the rifle of a policeman who has fallen to the ground and then opening fire at the victim, and the same man then also going and campaigning for the Samajwadi Party. Sanju Verma, your counter. Thank you Padmaja ji. I just want to say a couple of things. सबसे पहली बात तो ये है that if you look at the statement of the Prayagraj Commissioner of Police, Mr. Ramit Sharma, and if you look at the statement of the Vice Chairman of Prayagraj, Local Development Corporation, Mr. Arvind Chauhan, both have said one thing, Padmaja. They have said that before any of, Atiq Ahmed or Ashraf Ahmed or Zafar Ahmed or Sadakat Khan, these are all people who are close associates of Atiq Ahmed, including his wife Shaista Parveen, who has been named in the FIR, and she was staying in the house of a man called Khalid Jafar, whose house has also been demolished. All these people who are associates of Atiq Ahmed, the UP government, the Prayagraj Local Municipal Corporation sent at least 6 notices. Read the exact statement by Arvind Chauhan. 6 बार पिछले 2 सालों में 2020 से नोटिस भेजे जा रहे हैं. Forget about responding to the notices with day abandon. These people actually threw a gauntlet at the UP administration, defying them. आप पहले तो क्रिमिनल्स को, अपराधियों को पालते हो, पोसते हो, उनको नर्चर करते हो, उनको लोकसभा की टिकट देते हो, बाद में जब गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होती है, तब आकर आप टीवी डिबेट्स पर रोते हो, बिलबिलाते हो, बौखला जाते हो। ऐसा नहीं चलेगा। बताइए ना, ये लोग कौन हैं? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिन्हें सम्मानित करती है बीजेपी, जिन्हें सम्मानित करते हैं मुख्यमंत्री जी, जिन्हें मंच पर नजर आते हैं लोग, ये लोग कौन हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात की आईपी सिंह साहब। कौन है वो लोग जिनको सम्मानित किया जाता है और मंच पर लाया जाता है? हमने कुछ तस्वीरें निकाली, राम राज्य की बात हो रही थी, तो अरुण शुक्ला डालीगंज में, लखनऊ में, उनको बहुत नाम था, बहुत नामचीन अपराधी थे वो। मुलायम सिंह यादव जी के साथ देखे जा रहे हैं 1990 में। रमेश कालिया का भी नाम, अरुण शुक्ला को चुनाव लड़ाई थी एमएलसी का। अरुण शुक्ला के रिलेटिव को टिकट किसने दिलवाया? समाजवादी पार्टी का लिंक था। कानपुर में पिछले साल दंगे हुए थे, कानपुर में जो पिछले साल दंगे हुए थे, उसमें यह पता चला कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर
दंगे की साजिश रची गई, उसके एडमिन थे निजाम कुरैशी, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, और बाकी जितने अतीक अहमद ये सब, इनका तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है. द बॉटम लाइन बीइंग दैट Mafia Raj has to end, and a stern message has gone out to the people who think that they can drag Uttar Pradesh back to the dark ages of the 90s. It's not that time anymore, and it must not be allowed. Thanks very much all gentlemen. Sanju Verma for joining me.